Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about GST, e-way bill and e-invoicing in Tally Prime that current release 3.0. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. We are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We are also into the multiple software, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So the speakers are here now. The presentation will be conducted by Miss Aarti. So Aarti, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration by Miss Payal. So Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you. Okay. Hearty welcome all of you. So I now request Aarti and Payal to move ahead with your presentation. Yes, ma'am. Hello. Hello. Ma'am, my screen is visible. Yeah, it's visible. Okay, thank you. Hello everyone, myself Aarti Narode, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic is GST, e-way bill and e-invoice in Tally Prime. Activate GST for your company. To use Tally Prime for GST GST compliance, you need to activate the GST features. Once activated, GST related features are available in ledger, stock item and transaction and GST return can be generated. सबसे पहले हमें टैली प्राइम में GST का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उससे हमें लेजर, स्टॉक आइटम एंड ट्रांजैक्शन पे GST एप्लीकेबल हो जाता है. Activate and configure GST for regular dealers. First, open the company for which you need to activate GST. Second, सबसे पहले हमें GST का एक्टिवेशन करने के लिए जो कंपनी में हमें GST एप्लीकेबल करना है वो कंपनी हमें ओपन करनी है. नेक्स्ट है प्रेस F11 फीचर्स सेट इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, इसको यस. सेकेंड हमें फीचर्स या F11 फीचर्स ओपन करके उसमें सेट इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ऑप्शन यस करना है. जनरेट ई-वे बिल विद टैली प्राइम. And e-way bill is a document you need to carry when you transport goods from one place to another. In Tally Prime, now you can generate e-way bills with the help of direct API user. Tally Prime offers a very simple and smooth e-way bill experience for its user. ई-वे बिल ये एक डॉक्यूमेंट है, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना रहता है तब यूज हो जाता है, तब हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है. तो टैली प्राइम ई-वे बिल कॉन्फ़िगरेशन. The initial setup includes GST registration on the e-way bill portal and a simple one-time configuration in Tally Prime. ई-वे बिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें टैली प्राइम में एक ही टाइम करना पड़ता है, वन टाइम ही करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन ऑन ई-वे बिल पोर्टल, हमें रजिस्ट्रेशन ई-वे बिल पोर्टल पे करना पड़ता है. तो वो कैसे करेंगे? ओपन ई-वे बिल पोर्टल एंड लॉग इन. ई-वे बिल का पोर्टल ओपन करके उसको लॉग इन करना है. यू नीड टू क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर GST. सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है. You must click on send OTP after which an OTP will be sent to the registered mobile numbers displayed on the screen. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है हमारा GST का, उस पे हमारा OTP जाएगा.
Next, enter the OTP just received and click verify OTP. After verification, you will see the following screen with an option to select your preferred GSP. हमें OTP डाल के वेरीफाई करना है और वहाँ पे select add new after which the following screen appears. हमें GSP का वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है. Here you must select Tally India Private Limited as your GSP. You and enter a username and password of your choose and click on add. हमें वहाँ पे Tally India Private Limited GSP सेलेक्ट करके यूजरनेम और पासवर्ड डालना है जो हमें चाहिए. This completed is your user profile creation with Tally India Private Limited as the GSP. You now have to start Tally Prime to completed the balance configuration. हमारा अभी ईवेबिल का जो पोर्टल का कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रोफाइल क्रिएट करना है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब आप टैली में ईवेबिल जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस इन टैली प्राइम. इनेबल ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल टू यस, मेक ईवेबिल also to yes. If applicable, record voucher entry like you usually do in Tally Prime. All relevant information as soon as you accept the screen, you will be intimated with a message asking if you want generate e-invoicing. ई इनवाइस जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसको एप्लीकेबल करना पड़ता है. तो हमें ई इनवाइस एप्लीकेबल को यस करना है या फिर फीचर्स में जाके. और नेक्स्ट है मेक ईवेबिल आल्सो टू, उसको भी यस करना है. उसके बाद में हम जब एंट्री बुक करेंगे ना, तब हमें वहाँ पे ईवेबिल का ई इनवाइस का ऑप्शन शो करेगा. वहाँ से हम विद इन सेकेंड में ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Aarti, for the nice presentation. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay, hello everyone. Myself, Payal Mistry. I am representing live demo on behalf of Radlakshmi Solutions Private Limited. तो आज हम लोग का टॉपिक है GST, ई-वे-बिल एंड ई-इनवॉइसिंग इन टैली प्राइम. जैसे कि आरती मैम ने बताया कि GST, ई-वे-बिल और ई-इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेबल कैसे होता है. तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे. जैसे कि अभी हम लोग ने अभी तक GST, ई-वे-बिल और ई-इनवॉइसिंग टैली 2.1 में देखा. अभी मैं आपको वो 3.0 में बताने जाने वाली हूँ. सबसे पहले F11 में जाना है. F11 में जाने के बाद टैक्सेशन में अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, वो ऑप्शन को यस करना है. जैसे कि यहाँ पे मेरी कंपनी महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है. रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर किया है. GST नंबर मेंशन किया हुआ है. मेरा जो भी GST मंथली है या क्वार्टरली है वो मैंने सिलेक्ट किया. एग्जांपल अभी ये मेरा मंथली है तो मैंने मंथली किया हुआ है. ई-वे-बिल और ई-इनवॉइसिंग का डिटेल्स मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल करके फॉलो अप किया हुआ है. अगर अभी आप जब 2.1 में आप अगर आपकी 2 या 3 कंपनी रहती थी तब अलग अलग क्रिएट करके उसका मेंशन करते थे ई-वे-बिल और इनवॉइसिंग, लेके आप एक ही कंपनी में सारे रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने मुंबई का किया हुआ है. ऐसे अगर आपको अदर स्टेट का भी करना रहता है तब कर सकते हैं. यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन, ई-वे-बिल और इनवॉइसिंग का मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है और इसे मैं सेव करती हूँ. सेव करने के बाद सबसे पहले मैं GST, हम लोग सेल्स की इनवॉइस बनाती हूँ. जैसे कि अभी मैं सेल्स का ई-वे-बिल और ई-इनवॉइसिंग साथ में जनरेट कर रही होती है. जैसे कि यहाँ पे मेरा वाउचर नंबर है 12. आज का यहाँ पे मैं अपना डेट मेंशन करती हूँ 23. पार्टी सिलेक्ट कर देती हूँ कोई भी एक. ये मेरी पार्टीज है. सॉरी, यहाँ पे मैंने एक पार्टी ले लिया. पार्टी लेने के बाद यहाँ पे एक स्टॉक लेती हूँ. स्टॉक लेने के बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी लेती हूँ. रेट
अमाउंट, जीएसटी सेल्स, यहाँ पे मैंने लेजर ले लिया, यहाँ पे मेरा आउटपुट अगर सीजीएसटी सॉरी यहाँ पे मेरा CGST एंड SGST आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड GST ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन को मैं यस करती हूँ। यस करने के बाद सबसे पहले आपको ई-वे बिल की डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे पहले आपको उसका डेट मेंशन करना है ई-वे बिल का। अगर आपका ये सब टाइटल अगर सप्लाई है, जॉब वर्क है, एक्सपोर्ट है या फिर अदर्स जो भी रहेगा वो आपको सब टाइटल में सिलेक्ट करना है। एग्जांपल अभी मेरा ये सब टाइटल है। डॉक्यूमेंट टाइप में मैं टैक्स इनवॉइस लेती हूँ। यहाँ पे मेरा कंसाइनर का जो भी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे फिलअप करती हूँ। जैसे कि मेरा कॉलम बोली है, यहाँ पे मैंने ले लिया। यहाँ पे मेन प्लेस एंड स्टेट कंपलसरी सिलेक्ट करना होता है। अगर हम लोग वो सिलेक्ट नहीं करते तो वो ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे मैं मुंबई ले लेती हूँ, मुंबई। यहाँ पे अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी है और उसका नेम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे पार्ट बी का डिटेल भी दोनों में से कोई एक डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पार्ट 2 का डिटेल फिलअप कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक व्हीकल नंबर मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि मेरा व्हीकल नंबर है। यहाँ पे वाउचर टाइप में मैं रेगुलर ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ पार्टी कॉलम बोली है एंड शिप टू मुंबई। ये करने के बाद आपको डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस के ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है फिर ई-वे बिल जनरेट करना है तो आपको यस करना है। और यहाँ पे आप ई-वे बिल या ई इनवॉइसिंग का जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल का यूजर नेम और पासवर्ड आएगा आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने जून मंथ का मेरा जनरेट किया हुआ है ई इनवॉइस। जैसे ही आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे तो आपको आपका ऐसे डिटेल दिखाई देगा। और ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग में अगर कुछ एरर आते हैं तो हमें यहाँ पे शो करते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, ई-वे बिल या ई इनवॉइसिंग। एग्जांपल अगर मुझे ई इनवॉइस में कुछ एरर आते हैं तो वो यहाँ पे पेंडिंग एक्सचेंज विद ई इनवॉइसिंग बिल, वो सारे भी जो भी इनवॉइस ई-वे बिल या ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड जो भी एरर्स है या फिर उसका रिपोर्ट्स है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे मुझे ई इनवॉइस का रिपोर्ट शो कर रहा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करके चेक कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि ये मेरा पेंडिंग्स बिल है। ये क्यों पेंडिंग्स है? पेंडिंग IRN जनरेशन। आपका अगर कोई भी बिल अगर पेंडिंग होगा या फिर जनरेट नहीं हुआ रहेगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली ई इनवॉइस या ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एज इट इज ई-वे बिल का डिटेल्स है। यहाँ पे ई-वे बिल में भी सेम एज इट इज वैसे ही है, पेंडिंग फॉर IRN बता रहे हैं। अगर आप इसे प्रॉपरली जनरेट करोगे, इसमें अगर कोई भी डिटेल्स फिलअप नहीं किए हैं आपने तो वो जनरेट नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल मेंशन करनी है तभी जाके ये जनरेट होगा। सेकेंड चीज, यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिया गया है 3.0 में। जैसे कि यहाँ पे बताती F11 में गई, यहाँ पे अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट एंड लिंक QR कोड। यहाँ पे आपको पेमेंट का लिंक या QR कोड यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन यस करना है। अगर आपका जो भी रहेगा यहाँ पे नाम वो लेना है। यहाँ पे आपका यूपी, रेजोपी या पेयू से जैसे आपको पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करना है। इसका मर्चेंट नेम, यूपीआई एड्रेस जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, सेल्स लेजर्स, यहाँ पे एक पार्टी के अंदर मैं जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल एक नॉर्मल इनवॉइस शो कर रहा है ई इनवॉइसिंग का, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने QR कोड जनरेट किया हुआ है। ये QR कोड से आप लिंक भी जनरेट कर सकते हो पेमेंट की। वैसे आप ई-वे बिल और इनवॉइसिंग इजीली अपलोड भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।
Thank you, Aarti and Payal, for your presentation. It's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, team. Myself is Bhagwati Jandaria. So today's session is GST and e-way bill and e-invoicing. So today is the last session of this GST, e-way bill and e-invoicing series. Last 4 weeks we are working on the release 3 series, and this is a part of that particular series. You are it here. So overall, you should know very well कि e-invoicing आपके 5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर 1 अगस्त से चालू होता है. So most of the businesses जो 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जिनका रहा है, उनके लिए ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा 1 अगस्त से. तो टैली प्राइम के अंदर में आप कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, कैसे यूजेस करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे डायरेक्ट आप टैली प्राइम के थ्रू ऑटोमेटिक ARN जनरेट करेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, एक इनवॉइस जनरेट करने में आपको कम से कम अगर जीएसटी पोर्टल पर जाके मैनुअल करना पड़ेगा तो इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 20-30 मिनट्स, और चांसेस गलत होने की ज्यादा होगी. बट इन टर्म्स ऑफ द टैली प्राइम, अगर आपने टैली प्राइम में लेटेस्ट वर्जन 3.0 में है तो आपका इनवॉइसिंग डायरेक्टली टैली के सिस्टम से ही, सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाएगा. आपका कोई ह्यूमन एरर नहीं होगा, डेटा एरर नहीं होगा, और ARN प्रॉपर जनरेट हो जाएगा और QR कोड आपके बिल के ऊपर आ जाएगा. जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी टाइम सेविंग है, और जितनी भी मिस्टेक हो सकती है उनसे आपका छुटकारा मिलेगा. इसके साथ साथ मैं आपकी ई-वे बिल की बात करूंगा. जो भी ई-वे बिल आप अभी मैनुअली अपलोड कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं GSTN के पोर्टल से, आपके रिलीज 3.0 में उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशंस है. आप ई-इनवॉइसिंग के साथ साथ ई-वे बिल भी जनरेट कर सकेंगे, जिससे आपको मैनुअल वर्क कंप्लीट खत्म हो जाएगा, और एरर जो होने की चांसेस हो सकती है मैनुअल, वो कंप्लीट आपकी 0 हो जाएगी. इससे आपका टाइम एंड कंप्लायंस दोनों के इश्यूज आपके बचेंगे, और आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाएंगे. सो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, आप इंस्टेंट राज्यलक्ष्मी सॉल्यूशन जो नंबर आपके चैट में, जूम के चैट में डाला हुआ है, उसमें आप इंस्टेंट कनेक्ट करें. आप इनवॉइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट करें, टैली प्राइम रिलीज 3 अपग्रेड इमीडिएट करें, ताकि आप 1 अगस्त से आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाओ. दिस इज आइडिया ऑफ दिस टैली प्राइम का जो GSTN के ऊपर हमारा जो फोकस है. यही हमारा आइडिया है कि एवरी कस्टमर कैन यूज कंप्लीट टैली इन द प्रॉपर मैनर. जैसा कि आप जानते हैं, एवरी मंथ वी आर रनिंग सम few programs or the offers. So in this month टैली को आप मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल वे से आप यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपकी ऑफिस बंद हो गई है, रात में आपको 11 बजे आपकी गाड़ी लगी है, आपको इमेजिन जनरेट करना और ई-वे बिल जनरेट करना है. अगर आप टैली क्लाउड पे हैं तो डेफिनेटली यू कैन जनरेट. आप किधर भी वर्ल्ड में होंगे आप जनरेट कर सकेंगे. तो इन सभी चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने टैली क्लाउड हम आपको देते हैं, जहां पर आप अपनी टैली को पोस्ट करके पूरी दुनिया में कहीं से भी अपने काम को कर सकेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. आप कोई भी लैपटॉप डिवाइस एंड कंप्यूटर डिवाइस पे, किसी भी डिवाइस पे जाकर के आप यूज कर पाएंगे. आपके फिंगर टिप्स में आपका डेटा आपका रहेगा. सो आप इस मंथ में अगर टैली क्लाउड का सब्सक्रिप्शन आप ऑप्टिंग करते हैं हमारे यहाँ से, तो यू विल गेट अ बिग बोनस मिलेगा. तो आप इसके लिए आप अपने जो अकाउंट मैनेजर जो राज्यलक्ष्मी से कनेक्ट करें, या चैटबॉट में जो नंबर डाल के रखे हैं उसको आप कनेक्ट कीजिए, और आप उसको डेमो देखिए और उसका एडवांटेज लीजिए. सेम वे में ई-इनवॉइसिंग ई-वे बिल को इम्प्लीमेंटेशन करें. टैली प्राइम 3 को अपग्रेड कीजिए, ताकि आप अपना बिजनेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यूज कर पाए और रन कर पाए. This is today's topics, and this overall idea is done from my side. Is over. Thank you so much, sir.
So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media. So thank you so much for joining today's session. So now we'll wind up the session. Thank you everyone.